क्लास बी को हम ओके डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने क्लास 11th में, जैसा कि आप जान रहे हैं, कि 2 लेक्चर्स के बाद मैथमेटिकल टूल पर डिस्कशन शुरू किया है। हमने प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स को स्टडी करने के लिए जितनी मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि वो कोई दिक्कत ना करें, कहीं भी कोई दिक्कत ना होने पाए। उस सीक्वेंस में आज हमने टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्री। एज यू नो, ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी कॉमन एज फार एज मैथमेटिक्स, but it is very useful in order to study the physics. Let us discuss some important or you can say details of the trigonometrical formulas, or how they can be utilized, how the formula can be realized. In this context, let me first talk about angle. This is a very general thing. As you know, angle always form between two lines, or you can say two lines के बीच का जो झुकाव है उसे हम एंगल्स में मेजर करते हैं। सपोज करिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज OP. Okay, OP is a line whose, let us suppose or assume, initial position is OX. Okay, and it revolves in anti-clockwise direction from its initial position. The revolution in anti-clockwise direction of this line OP from its initial position is measured in terms of angle. Okay, this angle written as always angle POX, which is theta, POX, which is theta, and it is measured in different units. Let me first know what are the units with which angle measured. First one is the degree. Okay, डिग्री में मेजर किया जाता है, उसको डिग्री लिखते हैं ऐसे। सेकेंड मिनट में, थर्ड सेकेंड में, एंड फोर्थ रेडियन। मिनट को जैसे बीटा इज इक्वल टू सम मिनट, तो मिनट के लिए 1 डैश लगाएंगे, सेकेंड के लिए 2 डैश लगाएंगे, रेडियन को RAD से लिखते हैं। अब ऐसे समझिए, डिग्री अगर इसको एक राउंड पूरा रोटेट करा दे लाइन OP को इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाउ मेनी एंगल ट्रेवर्स होगा? ये 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को हम लोग क्या मानते हैं? 2 पाई रेडियन। ये डिग्री में है, इसको हम लोग रेडियन में बोलते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन। ओके, सो यू कैन से पाई अपॉन 180 रेडियन। तो दिस रिलेशन मस्ट बी नो, इसको जानना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच इन रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच इन डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको मिनट में बोलेंगे, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 सेकेंड। ओके, एंड दिस इज 60 मिनट। मिनट को हम टाइम का भी यूनिट मानते हैं, लेकिन हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंगल, दिस इज एंगल, स्मॉलर एंगल को हम डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में मेजर करते हैं। तो दिस इज अबाउट द एंगल। ओके, एंगल की जरूरत पड़ती रहती है, तो फॉर दैट वी मस्ट नो, एंड लेट अस टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज।
ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को स्टडी करने के लिए एज यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स out of 3 for the angle basis. From the angle basis, this one is 90 degree. Let this is A, B and C right angle triangle. This is a right angle triangle. Okay, and this suppose angle theta. So this is known as base, this is known as normal with respect to this angle, and this is known as hypotenuse. Hypotenuse. Okay, इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण बोलेंगे. Okay, तो there are 6 types of trigonometrical ratios. What are these? First one is the sine of what? Theta. Second, cos theta, and third one is the tan theta. तो 3 बेसिक्स हैं और रिमेनिंग जो 3 आपको हम बताने जा रहे हैं, these are the reciprocal of these. तो sin theta can be written as from this triangle is equal to BC upon AB, that is BC upon AC, that is normal upon hypotenuse. Okay, so this always remember, you must remember this. And cos theta is nothing but this is adjacent side, which is base upon hypotenuse, and tan theta is nothing but normal upon base. Okay, if you look at these 3 in tangent, hypotenuse is not there, and this, with the help of these 2, tan theta can be obtained by dividing sin theta into cos theta. And fourth one can be written as equal to cot theta, which is nothing but 1 upon tan theta, and this you can write base upon normal. And fifth it is sec theta, which is 1 upon cos theta, and 7th is nothing but cosec theta, which is 1 upon sin theta. If you know these 3 basic trigonometrical ratios, which are sin theta is equal to normal upon hypotenuse, cosine theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to normal upon base. Here इसको बोलेंगे आधार बटे कर्ण, इसको बोलेंगे लंब बटे आधार. ओके, इसको बोलेंगे लंब बटे कर्ण. ओके, तो these 3 are the basics, and remaining 3 are the reciprocal of just tan, cot, reciprocal of cos, sec, and reciprocal of sine is the cosec theta. So if you know the right angle triangle, its side, you can calculate any trigonometric ratio with reference to any angle of that particular you can say right angle triangle. Okay, we have some formula regarding this trigonometrical ratios. Let me talk about that. First one is the sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and second one is the second one is the and this is the basic sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equal to
sec square theta. How this can be obtained? Look at this sin square theta, which is normal upon hypotenuse, and cos square theta, which is base upon hypotenuse. If you take the square of these two angles, you will find in the same right angle triangle. Let us, this is theta, and this one is the base are A, B, C. So sin theta is nothing but BC upon AC, and cos theta is nothing but AB upon AC. If you take the square of these two, sin square theta plus cos square theta, it means BC square upon AC square plus AB square upon AC square. This is nothing but BC square plus AB square upon AC square, and this is AC square upon AC square. That is what. It is very well proved that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, because from this right angle triangle, from Pythagoras theorem, the square of normal and base gives addition of square of normal and base gives you the square of hypotenuse. यानी इस पर जो इसका वर्ग प्लस इसका स्क्वायर gives you the square of this that is hypotenuse. So this can be proved, and this can also be proved. Similarly, we should know what is the trigonometric ratio of allied degrees. So in order to study that one, we must know what are the quadrants. Cartesian coordinate आप लोग पढ़े होंगे. Let us regard two mutually perpendicular axes. This one is x, y, and this is called origin, y dash, and this one is the x dash. दो mutually perpendicular axes या lines आपस में जहाँ intersect करती हैं, तो इसे हम coordinate two dimensional coordinate system बोल सकते हैं. This one is point of intersection, तो 0 0 बोलते हैं. Origin is known as origin of the coordinate, and this is known as first quadrant, and this is the second. This one is the third quadrant, and this one is the fourth. The term is quadrant. Okay, इसको बोलते हैं चतुर्थांश. ओवरऑल देखें तो 360 डिग्री यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रहे हैं. तो हाउ मेनी एंगल ट्रेवर्स, कोई भी लाइन ले कितना एंगल ट्रेवर्स करता है, निश्चित रूप से 360 डिग्री ट्रेवर्स करता है. और 360 डिग्री का 4 बराबर पार्ट्स कर दें, वी विल हैव 4 क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और एक बात यहाँ ये ध्यान में रखना आवश्यक है, इस ASTC कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स के लिए हमें किस एंगल में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो कौन सा पॉजिटिव होगा, सेकंड में जा रहे हैं तो कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, थर्ड में जा रहे हैं तो कौन पॉजिटिव, फोर्थ में. तो इन ऑर्डर टू नो दैट देयर इज अ ट्रिक व्हिच इज कॉल्ड ASTC. This is all positive. What is in first quadrant? All positive. In the second quadrant, sine and cosec is positive only. And in third quadrant, tan and cot are positive. And in the fourth one, cos and sec, these two are positive. So according to the angle of ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, तो विद रेफरेंस टू दैट वन वी हैव इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. एक बात और ध्यान रखना है, सपोज करिए हम बात करते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा की, माइनस थीटा की रादर, साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा. तो निश्चित रूप से माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इधर आया होगा, तो दिस गिव्स यू माइनस साइन थीटा. ओके, कॉस ऑफ एंगल माइनस थीटा गिव्स यू प्लस कॉस थीटा. क्यों? क्योंकि किस क्वाड्रेंट में चला गया,
ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से tan ऑफ माइनस थीटा गिव्स यू माइनस tan थीटा। ये तीन जान जाए तो शेष जान जाएंगे। सिमिलरली आप अगर 90 माइनस थीटा की बात करें, साइन 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली इट गिव्स यू cos थीटा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा गिव्स यू sin थीटा, ओके। tan 90 माइनस थीटा गिव्स यू cot थीटा, ओके। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं सभी। और अगर हम आगे देखें, अगर आगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो वी विल हैव साइन 180 माइनस थीटा। तो जाहिर सी बात है 180 माइनस थीटा जब लेंगे तो किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दिस गिव्स यू साइन थीटा। एंड cos 180 माइनस थीटा गिव्स यू माइनस cos थीटा। tan 180 माइनस थीटा गिव्स यू tan थीटा विथ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। ध्यान रहे यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव सबको लिख रहे हैं, बट एक चीज ध्यान रहे, साइन का जो आ रहा है 90 माइनस थीटा, कॉस का जो आ रहा है साइन, और tan का जो आ रहा है कॉट लिख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और अगर हम लिखना चाहें तो cos 90 प्लस थीटा अगर हम लिख रहे हैं, ये सेकंड में जाएगा, बट इट इज माइनस साइन थीटा होगा। और साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे, दिस गिव्स यू cos थीटा। ध्यान रहे 90 प्लस थीटा के साइन का cos का साइन, बट cos का 90 प्लस थीटा माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही ये नेगेटिव साइन cos हो जाएगा, केवल साइन पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस cot थीटा आएगा। इसी तक इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी जरूरत पड़ती रहती है कैलकुलेशन में, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते समय तमाम कैलकुलेशन करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ओके। स्टैंडर्ड एंगल्स में जैसे मान लीजिए थीटा आपने लिया 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें अब हम साइन की बात करेंगे, ओके। ये एंगल है, मान लो साइन थीटा। 0 पर 0, 30 पर 1/2, 1/√2 एंड 60 पर √3/2, 90 पर 1। ऐसे cos थीटा की बात करें तो 0 पर 1, 30 पर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इसी तरीके से tan की बात करें तो वी विल हैव 0 because sin theta upon cos theta, and this gives you √3, 1 upon √3, and this gives 1, and this gives √3, and tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी। ध्यान रहे tan थीटा इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तीन बेसिक्स हैं, साइन cos, इफ यू नो द साइन, इफ यू नो द cos, टेंजेंट ऑलवेज जान जाएंगे क्योंकि इन दोनों का रेशियो है। और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, tan का रेसिप्रोकल कॉट है। तो इट्स वेरी सिंपल। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से कॉट का, सेक का, कोसेक का भी निकाल सकते हैं। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। और हायर एंगल्स के लिए आप उनको पार्ट में ब्रेक करके निकाल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट few important trigonometrical formulas। अब ये जो important trigonometrical formulas की बात कर रहे हैं, just like sin a plus b, okay, and cos a plus b, okay, and similarly tan a plus b means what is the value of trigonometrical ratios if we take two angles, rather one angle, टू एंगल लें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू क्या हो जाती है? दिस गिव्स यू साइन ए cos b प्लस cos a sin b। दिस गिव्स यू साइन ए cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट cos a प्लस b,
दिस इज cos A cos B minus sin A sin B. Okay, this gives you cos A cos B minus sin A sin B. tan A plus B में क्या मिलेगा हमको? tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Similarly, we can write these formulas for difference as well, just like sin A minus B and cos A minus B, cos A minus B and tan A minus B. So let us see here what the thing difference here. In sin A minus B, we will have sin A cos B माइनस cos A sin B. ओके, यहां पर प्लस था, यहां माइनस हो गया, नथिंग विल चेंज. इन cos A minus B we have cos A cos B, rather minus it is plus sin A sin B. So it's very simple. जो यहां पर साइन थे यहां पर साइन चेंज हो रहा है. Now let us see here tan A minus B, tan A minus tan B upon 1 minus tan A into tan B. ओके, A प्लस B में क्या था? tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस था, या 1 प्लस हो जाएगा. तो these are the important formula which one should remember. ओके, तो इनको ध्यान रखिए क्योंकि इनका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इनका यूज हमें करना है क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी है. तो इसका अभी से एक नोट्स बना करके सारा लिखे रहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको धीरे धीरे. लेट अस टेक सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग द सम एंड डिफरेंस. ओके, तो सम और डिफरेंस की बात करते हैं. जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस साइन बी. ओके, अब यहां दो साइन का एडिशन करते हैं तो व्हाट वी विल गेट? 2 साइन A plus B by 2 cos A minus B by 2. ध्यान रहे, यहां पर हमने दो साइन का एडिशन किया अलग अलग एंगल्स के साइन का, और यहां पर जो रिजल्ट मिला दैट गिव्स यू द प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विच आर द एंगल सम का एवरेज है और डिफरेंस का एवरेज है. ओके, सिमिलरली साइन A minus sin B, what is its value? Its value comes out to be 2 cos A plus B by 2 and sin A minus B by 2. Okay, so we have this formula. In these two formula, if we look at, we find that here we take the sum of two angles of different angles of sine. So we will have 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. Here first term is the sine term, which is the sum of average of the two angles, and the second term is cos. But if we take the difference of two sine angles, means sine A minus sine B, the first term is positive term is cos, and the difference term is the sine. Now let us see what is the value of cos A plus cos B. So we have 2 cos A plus B by 2. ओके, एंड cos A minus B by 2. रिमेम्बर इससे अलग है, यहाँ साइन A प्लस साइन B में साइन cos दोनों टर्म आ रहा है, यहाँ पर केवल cos सम टर्म और cos डिफरेंस टर्म. इफ यू सी cos A minus cos B, दिस गिव्स अस 2 cos A plus B by 2 into sin A, so rather V minus A by 2. Okay, sorry, 2 sin A plus B by 2 and sin B minus A by 2. Here one thing difference also, cos A plus cos B में both terms are cosine terms, and in difference of cos A minus cos B अगर लें तो both are साइन टर्म्स प्रोडक्ट के रूप में है. पहला एडिशन वाला टर्म जो है साइन है, और दूसरा डिफरेंस जब हम ले रहे हैं A माइनस बी के बजाय B माइनस A बाई 2 लिख रहे हैं.
और अगर a माइनस पी बाई टू लिख रहे हैं तो विथ नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सो कहीं पर भी हमें अगर मान लीजिए दो अलग अलग एंगल्स के साइन का सम है और उन्हें हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, साइन टर्म और कोसाइन टर्म दोनों। इसकी उपयोगिता कहाँ रहती है? आप लोग जो 11th में वेव्स पढ़ेंगे तो दो अलग अलग इंडिविजुअल वेव्स जो है एक डायरेक्शन में जब सुपरपोज करती हैं तो वह एक नए प्रकार की वेव बनाती हैं। तो उनका जो सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टेंट वेव होती है वो इस तरह से होती है, साइन ए प्लस साइन बी, यानी उस वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव बोलते हैं। एक ही जगह से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो चल रही है तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न फॉर्म होता है। और या प्रोग्रेसिव वेव तो अलग है, इनकी जरूरत कुल मिलाकर के हमको उसको पढ़ने में होगी वेव्स में। नाउ सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूला? Multiples means just 2a and 3a. Okay, multiples of 1a, 2a, 3a, इस टर्म में हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो let us talk about sin 2a क्या होगा? तो that is sin a plus a। अगर इसको हम उस a plus b के फार्मूले से पढ़ें तो sin a cos a plus cos a sin a। ओके, तो यहाँ क्या मिला? 2 sin a cos a। तो sin 2a को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a, इस फार्मूले से a प्लस a से, ये तो समझने के लिए मैंने बताया। इसी तरीके से cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको माइनस b cos a प्लस b को क्या लिखा था? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसमें a लिख दें तो जिस निश्चित रूप से cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। b को भी अगर a लिख दें तो ये cos a स्क्वायर है, माइनस साइन a यानी साइन स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a आपस में जुड़े हैं, जैसे cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सो नो प्रॉब्लम। सिमिलरली वी कैन राइट tan 2a, दिस इज नथिंग बट 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये कैसे संभव हुआ? tan a प्लस tan a लिखें तो tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, वेरी सिंपल। तो ये 2a का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी एंड tan a प्लस बी के फार्मूले से इंटरलिंक है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं हो। केवल इस फार्मूले में दिक्कत आएगी, cos a माइनस cos b, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b जब लिखेंगे तो आपके दोनों टर्म कोसाइन टर्म होंगे, cos a माइनस cos b लिखेंगे दोनों टर्म साइन टर्म होंगे, एक b माइनस a हो जाएगा। और इसमें a प्लस साइन b करेंगे तो a पॉजिटिव वाला साइन और दूसरा डिफरेंस वाला एडिशन वाला साइन और डिफरेंस वाला कोसाइन। यहाँ डिफरेंस जब लेंगे दोनों का तो एडिशन वाला टर्म कॉस और डिफरेंस वाला टर्म साइन। तो इसको किसी भी ट्रिक से आप ध्यान रखें। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड ए फॉर्मूला फॉर 3a। जस्ट एज्यूम हियर साइन 3a, साइन 3a को आप लिख सकते हैं साइन a प्लस 2a। इससे अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। सिमिलरली cos 3a कैन बी रिटन एज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो दीज आर द टर्म विच वन शुड नो। अब अगला हमारा इसमें पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फॉर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कोई है, मान लीजिए ट्रायंगल में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगता है। सपोज करिए यू हैव गिवन a triangle of this type, ABC is a triangle। इसको हम मान लेते हैं स्केलीन है ABC। A के सामने वाली साइड को एंगल A के सामने की साइड को A, B के सामने की B और C के सामने की C।
तो यहाँ एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, हम लिख रहे हैं cos ऑफ ए, इस एंगल का cos लिखेंगे, दैट गिव्स यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ध्यान रहे, जिस एंगल का कोसाइन लिख रहे हैं उसके सामने वाली साइड को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम माइनस जो जिस एंगल के सामने वाली साइड का डिफरेंस करना है अपॉन 2bc। सिमिलरली यू कैन राइट cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac एंड cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। इस फार्मूले में एक सिमिलरिटी है कि जब a एंगल लिया गया है तो डिफरेंस a साइड का है और इनका स्क्वायर का सम माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों का वर्ग। ऐसे b का लिया गया तो डिफरेंस b का है, c का एंगल का कॉस लिया गया तो डिफरेंस c का स्क्वायर का है और नीचे वाले में c नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हमें आप ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इट्स वेरी सिंपल, हम निकाल लेते हैं। लेकिन कोई भी ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे जरूरत पड़ने पर निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत आसान फार्मूला है। अब जैसे ABC यही ट्राइंगल है, इसमें एक पहले निकालते हैं S, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी तीनों साइड्स के सम का एवरेज निकालेंगे, या एवरेज तो नहीं कहेंगे, तीनों साइड्स के सम का हाफ निकालेंगे। और एरिया जो होता है फ्रॉम हीरोइंस फार्मूला ट्रायंगल का, इट इज S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब ये क्या है, इट इज गिवन हियर। तो आपको अगर तीनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स मालूम हो, यू कैन फाइंड इट्स एरिया वेरी सिंपल वे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करिए दिस एंगल इज गिवन, दिस इज ऑफ दिस ट्राइड, तो इट्स वेरी सिंपल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, दिस 90 डिग्री है और ये नॉर्मल है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, हाइट ध्यान रहे, हाइट को यहाँ एस से लिखा गया है, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज है, इसको छोड़ दें तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ये कैसे समझ सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम बनाए एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा और रेक्टेंगल जो फॉर्म होगा तो रेक्टेंगल का पूरा एरिया क्या आता है, a इंटू बी या a इंटू बी। ओके, और ये हाफ रेक्टेंगल का हाफ पोर्शन है ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप रियलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली तमाम प्रकार की जो शेप्स हैं उनके एरिया को भी हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती रहती है। खास करके चैप्टर फर्स्ट में जब एरर हम पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालना शुरू करेंगे तो वहां पर इस सब की जरूरत पड़ेगी। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर का एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया तो एरिया स्क्वायर का क्या है, साइड का स्क्वायर, इट्स वेरी सिंपल। रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल का है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, ए इंटू बी कहें, एल इंटू बी। और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, आर रेडियस है आपको मालूम है। इसी तरीके से रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम स्फीयर की बात करें। ओके, स्फीयर में दो चीजें, एक तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी उसका वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एक होता है वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम जो इसका होगा इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि स्फीयर कैसी शेप है, 3 बॉडी शेप है, इसका वॉल्यूम निकलेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों निकलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है ना, सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी है, तो सिलिंड्रिकल शेप में कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इट इज 2 पाई आर एच। ओके,
एंड द वॉल्यूम इसका क्या होगा सिलेंडर का? वॉल्यूम डेफिनेटली इट इज पाई आर स्क्वायर। एज यू नो सिलेंडर क्या है, इसका सेक्शन होता है सर्कुलर, और सर्कुलर बेस पर यानी इसका पाई आर स्क्वायर पर हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली